Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Today our topic is about divine origin theory. Today we will study about the origin of the state. Today we will discuss that what divine origin theory says about the origin of the state. We will discuss that what this theory says, that how state has been created, how state came into existence. So before starting main topic, I want to tell you subscribe our channel if you haven't subscribed it, and also watch whole video so that you will be able to understand this topic. So let's now proceed towards topic, and our topic is divine origin theory. According to divine origin theory, state has been created by God, and this is the oldest theory of the origin of the state. State is the creation of the God, and king is the representative of the God. King has been appointed by the God, and it is the religious duty of the every citizen, every subject of the state to obey the king. Whosoever never obeys the king never obeys the God. So it is the religious duty of everyone to obey king. No one can disobey the king, the ruler, and the king is the supreme authority, and none can dare to rise voice against the king. And this theory gives rise to the theory of the divine rights of the kings, and according to this theory, the king derives the sanction of the rule from the God. So the king enjoys supreme power, and the king is the supreme authority, and if the king goes against the rights and interests of the people have no right to rebellion against the king. They have no right to rise voice against the king, and they have to only obey the king. तो इस थ्योरी के अगर मुताबिक हम देखें तो ये थ्योरी कहती है कि जो स्टेट है इसको क्रिएट किया है गॉड ने, और गॉड ने किंग जो है उसे अपॉइंट कर दिया है एक एजेंट की मतलब तरह, और जो मतलब रूल करता है लोगों पर, और लोग जो है उनको उसको मतलब ओबे करना ज़रूरी है. अगर कोई नहीं करेगा ओबे किंग को, तो किंग को ओबे ना करना गॉड को ओबे ना करने के बराबर है. और हर एक मतलब सिटीजन जो है उसकी रिलीजियस ड्यूटी है कि वो क्या करे, ओबे करे किंग को. और किंग जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, और जो भी वो कहता है वो क्या है, लॉ है. और ये देती है, ये थ्योरी जो होती है ये देती है मतलब डिवाइन राइट देती है किसको, किंग इसको. ये कहती है कि किंग जो होता है उसको सैंक्शन मिलती है डायरेक्टली गॉड की तरफ से रूल करने के लिए एक स्टेट में लोगों के ऊपर. और अगर किंग जो है वो इंटरेस्ट्स और राइट्स के खिलाफ भी जाए, उन मतलब सिटीजन जो है उनके राइट्स को अगर वायलेट भी करे, तो सिटीजन इसके पास ऐसा राइट नहीं है, कोई भी ऐसा हक नहीं है कि वो किंग के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाए, वो उसके खिलाफ रिबेलियन करे. अगर किंग उनको मारे भी, इवन इफ किंग किल्स देम, द पीपल हैव नो राइट टू रिबेलियन अगेंस्ट द किंग. दे कैन ओनली सीक forgiveness, they can pray to God and seek forgiveness from. तो उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है, और स्टेट जो है क्रिएट गॉड ने किया है. ये है क्या इसका कंसेप्ट, मतलब डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी जो है इसके मुताबिक ये कहती है कि किंग जो है उसको गॉड जो है वो मतलब अपॉइंट करता है, और स्टेट जो है गॉड ने ही क्रिएट कर दिया है. तो आगे आगे जब मतलब पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आ गई, तो विद द passage ऑफ टाइम दिस theory was criticized. Now we will study about the criticism, that on what based on what thing is on which thing is this theory was criticized. So first criticism is that state was not created by God. On this basis this theory was criticized, that state was not created by God. State was created by mankind because of the political stabilization, and there are some factors which are responsible for the creation of the state, and this theory is against those factors. This theory is against the stabilization, political stabilization of the people, because of which state came into existence. Because of that thing this theory was criticized. तो ये थ्योरी कहती है कि
स्टेट जो है उसे क्रिएट कर दिया है गॉड ने, लेकिन इस बुनियाद पर इसे क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, मलामत कर दिया गया है कि स्टेट जो है उसे गॉड ने क्रिएट नहीं कर दिया है। कुछ फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कि लोग जो है वो मतलब वक्त के गुजरने के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन जब आ गई, कुछ फैक्टर्स जो थे ऐसे जिन्होंने मतलब मजबूर कर दिया लोगों को कि वो मतलब क्या करे, स्टेट को क्रिएट करे, एक रूल को, एक निज़ाम को बनाए और एक स्टेट को बनाए और डेवलपमेंट की ओर जाए। तो इस चीज़ के मुताबिक ये थ्योरी जो है इसे क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया। तो नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म जो है वो है दिस थ्योरी रिड्यूसेस पीपल टू डम ड्राइविंग cattle and it inherits all rights from people. The citizens have no rights at all. They cannot raise voice against the king. तो ये जो है थ्योरी इससे क्रिटिसाइज कर दिया गया इस बुनियाद पर भी कि ये थ्योरी जो है कोई भी राइट, कोई भी हक लोगों को नहीं देती है। अगर किंग जो है वो उनके राइट्स को वायलेट भी करता है तो उनके पास कोई भी ऐसा मतलब राइट नहीं होता है कि वो किंग के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो इस बुनियाद पर भी इसे क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया। और नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो है सिक्युलर कंसेप्ट जो है वो, ये थ्योरी जो है, दिस थ्योरी इज आल्सो अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ द सिक्युलरिज्म विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी के मुताबिक सिक्युलरिज्म जो है ये मतलब हर स्टेट में है, ये मतलब आज। तो ये थ्योरी जो है, ये कंसेप्ट सिक्युलरिज्म जो है इसके खिलाफ है। तो ये मतलब कहती है कि सिक्युलरिज्म जो है कुछ ऐसा नहीं है, सिक्युलरिज्म का कंसेप्ट जो है इसके खिलाफ है। तो इस बुनियाद पर इसे क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया। सिक्युलरिज्म के मुताबिक स्टेट और रिलीजन जो है वो अलग अलग है। पॉलिटिक्स और ये रिलीजन जो है ये दो अलग चीज़ें हैं। जो जैसे मतलब अपना रिलीजन जो है उसको मतलब पालना चाहे वो वैसे पाल सकता है, लेकिन ये थ्योरी यहाँ पर जो है इसकी कंसेप्ट के मतलब खिलाफ है सिक्युलरिज्म के। तो इस बुनियाद पर इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया। तो so today our topic was this, and I hope that when you will watch whole video, you will understand, and this topic will prove helpful to you. And if it proves helpful for you, do subscribe our channel, like and share it. And this is sufficient for today. We will meet next time with the next topic. By then, well, Dictory, take care.